Okay, but sorry for the little delay because of some interruption. We were talking about types of noun, and there are. I just told you that there are five kinds of noun. Still, some participants are coming. That's why I have to admit them as well. So, give me some time. Right, beta. We were talking about noun and types of noun. I was just given you a little bit of recap of proper noun, common noun, material noun, abstract noun, collective noun, and along with the new one, which was uh, the pair noun, which is not mentioned here, but we have got the pair noun as well. I hope my screen is being shared now with everyone and my voice is clear. So we are going to start with the other thing. And the second part of parts of speech is pronoun. A simple thing is that pronoun is a word which is used in place of a noun or it replaces a noun. I discussed with you in the last class that it is very simple that when we're talking about pronoun, it simply means that if my name is Harold, you can call me another name or give me another name, and the other name can be he. Or if there is a woman who is just teaching you people, you can have another name of her, and that can be she. So these are pronoun. We will continue with some of the definitions of pronoun. बेटा सबको आवाज आ रही है आई कैन अंडरस्टैंड नाउ प्लीज स्टॉप चैटिंग एंड इफ देयर इज नेसेसिटी देन चैट अदरवाइज जस्ट गेट टू द लेक्चर्स आपके पास आई वी यू ही शी इट दे दीज आर बेसिकली द प्रोनाउन आपको बहुत दफा जब से आप पढ़ रहे हैं आप लोगों को बार बार टीचर्स ने कुछ चीजें बताई होंगी थर्ड पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन so you have to see here that what are these now. ये ये इनको जो पॉइंटर्स हैं उनको नहीं दे रहा यार नहीं नहीं ये पॉइंटर्स हैं ना ऊपर हैं ऑलरेडी राइट प्रेस करके आ रहे हैं
यही है। चलें बेटा, you just look at the screen. Actually, I wanted to give you spots, some sort of spots, but unfortunately there is some technical problem. So we have to continue with the things which are available with us. We have got I and we. I and we are first person. You is second person. He, she, it is third person, and they is also third person. Now, I and we are basically singular. I is singular, we is plural, but they both are first person. Now, whoever, we will talk about it in detail when we'll be discussing about the present and past tense and future tense. Tenses में हम तफसीलन बात करेंगे. अभी के लिए ये समझ लीजिए कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बंदा समझा जाता है वो I होता है, इसलिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है. फिर आपके साथ जो लोग होते हैं वो we, आपके साथ जो मौजूद है. हमारे पास I और we जो है वो फर्स्ट पर्सन है. I is singular, we is plural. You is second person, which is also used for singular as well as plural. Then we have got he, she, it. These are the other three, which are the third person singular. Then we have got they, which is basically third person plural, जो कि एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है. और जो आपके पास जो कि आपके पास आमतौर पर हम सिंगुलर प्लूरल को यूज कर रहे होते हैं. यार आवाज बच्चे अभी भी कह रहे नहीं आ रही. सिंगुलर और प्लूरल जो यूज होता है वो आपके सेंटेंस और टेंस के मुताबिक यूज होता है. वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन विल बी having the topic of tenses. Now move forward so that we can just have some sort of some lectures delivered today. आपके पास इस चीज को देखिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आपका जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज हैविंग बेसिकली थ्री cases. Number one case is called nominative, second case is called objective, and third case is called possessive. बेटा हमारी तरफ से आवाज जा रही है और सब बच्चों को आ भी रही है. प्लीज चेक योर कनेक्शंस. Everyone, please check your connections. Yes, I have got the information from some students that आवाज आ रही है, इसलिए प्लीज टेक द लेक्चर सीरियसली. यस इट इज देयर दैट कभी कभी हो जाता है लेकिन कंटिन्यूसली नहीं आए ये नहीं होता. आपके पास तीन तीन तरह की चीजें होती हैं. एक केस होता है नॉमिनेटिव, दूसरा होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव, और तीसरा केस होता है हमारे पास पोजेसिव केस. बेटा अभी जो थोड़ी देर पहले हमने स्लाइड में डिस्कस किया आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये आपके पास सब के सब जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं. लेकिन ये वो केस होता है नॉमिनेटिव. इस नॉमिनेटिव केस का मतलब ये होता है कि इसमें आप क्या करते हो कि जो डूअर होता है एक्शन का वो सब्जेक्ट होता है. इन नॉमिनेटिव केस डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट. सेकंड जिसको हम कहते हैं केस दैट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में आई चेंज इनटू मी, वी इनटू अस, ही इनटू हिम, शी इनटू हर, इट रिमेन्स इट, यू इनटू यू, दे इनटू देम. अब ये वो केसेस हैं जिसमें आपका नॉमिनेटिव केस जो है वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में. नाउ आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, इट, यू, दे, देम. आप लोग पिछले साल पढ़कर आए हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अगर आपको याद हो तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स होता है,
जब एक्टिव टू पैसिव में चेंज होता है तो इट चेंजेस इनटू द सेम वे एज आई हैव गिवन. The next case we have got the possessive pronoun. Now possessive pronoun or possessive case is जिसमें I changes into my and mine, we changes into our, he changes into his, she changes into her, it changes into its, you changes into your and they changes into their. अब यहाँ पे फर्क क्या है? नॉमिनेटिव केस में आपके पास क्या होगा कि आप डूअर होते हो किसी एक्शन का, आप काम करने वाले होते हो. ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि आपके जरिए वो काम किया जा रहा होता है. एज आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, आई प्ले क्रिकेट. जब आप आई प्ले क्रिकेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर बेसिकली गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट. आप जब ये कहते हैं कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हो जो कि क्रिकेट बना दिया गया है. तीसरे में पोजेशन शो करना होता है. पोजेशन शो करने का मकसद ये होता है कि आप कब्जा बताते हो, हाँ ये मेरा है, दिस इज माय क्लास, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज हिज टेबल, दिस इज हर मोबाइल, दिस इज इट्स. आपके पास की सारी चीजें हैं जो कि काम आती हैं. आखिरी चीज जो कि आपके कहीं ना कहीं काम आएगी आगे जाके, दैट इज इवन आपके 9th मैट्रिक के सिलेबस में भी काम आएगी, that is reflexive pronoun. Now reflexive pronoun is not a case, it basically is a different pronoun. आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई चेंज इनटू माई सेल्फ, आर चेंज इनटू आर सेल्फ, हिम चेंज इनटू हिमसेल्फ, हर चेंज इनटू हर सेल्फ, इट चेंज इनटू इटसेल्फ. योर, आपके पास यू जो है वो चेंज हो जाता है योर में और योर सेल्फ में और योर सेल्फ में. नाउ ये दो तरह से क्यों चेंज होता है? बिकॉज आप कभी कभी सिंगल होते हैं, कभी कभी आप डबल होते हैं. मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप में से कोई एक बच्चा है. when I am talking to one of the girl or one of the boy, I will say you have to do it yourself. Now single app. Now if I am saying to all of you that this is the task which you have to complete, then I'll be saying that you have to do yourselves. It means LF changes into LVES, selves. दे चूंकि खुद ही प्लूरल होता है, वो जमा होता है, इसलिए दे में आपके पास देम सेल्स होता है. इसमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंगुलर कुछ भी नहीं पड़ता होता. थोड़ा और आगे चलते हैं. आपके पास नेक्स्ट थिंग इज वर्ब. नाउ व्हाट वर्ब इज, आपके पास वर्ब क्या होता है? बेटा आपके पास दो तरह के वर्ब हो सकते हैं, एक रेगुलर कहलाता है, एक इरेगुलर कहलाता है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज की क्लास के लिए हम दो ही चीजों पे डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट वर्ब इज, वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास दैट any sentence cannot be called a sentence unless there is an action. और एक्शन क्या होता है? आपके पास वर्ब होता है. वर्ब मीन जो काम होता है, लाइक रन, स्पीक, स्विंग, लर्न, टीच, ये सारा कुछ जितना भी होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. अब इसके अलावा आपके पास दो तरह के वर्ब मौजूद होते हैं. वन इज कॉल्ड, बेटा कैन यू प्लीज स्टॉप चैटिंग नाउ. आप सबको आवाज आ रही है, हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, अब आपको जरूरत नहीं है किसी तरह की चैटिंग की या किसी किसी और तरह की चीज की, इसलिए प्लीज स्टॉप राइट, स्टॉप चैटिंग एंड एवरीथिंग. जस्ट लिसन केयरफुली सो दैट यू कैन लर्न. एक्शन, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. ना व्हाट इज रेगुलर वर्ब और व्हाट इज इरेगुलर वर्ब, आपके पास थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं ताकि आपको याद रह सके. मैं इसके नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा. रेगुलर वर्ब्स आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ब इज हैविंग थ्री फॉर्म्स. नाउ थ्री फॉर्म्स क्या होती हैं जिसको आप लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. राइट, फर्स्ट फॉर्म आमतौर पे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिसको कह रहे होते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. present, past and past participle. Now present mean first form, past mean second form, past participle mean third form. अब आपके पास जो थर्ड फॉर्म है, बेसिकली देयर इज नो फर्स्ट फॉर्म, देयर इज नो सेकंड फॉर्म, देयर इज नो थर्ड फॉर्म एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न और इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न. लेकिन हम क्या करते हैं, आप लोगों को आसानी से सिखाने के लिए कुछ चीजें हमने एक ऑप्शन रखा होता है कि हम उसको फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, सेकंड फॉर्म कह देते हैं और थर्ड फॉर्म कहते हैं. दरअसल वो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है. आप में से वो बच्चे जो कि चंद दिनों के बाद, सालों के बाद इंशाल्लाह किसी ना किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाएंगे, दे वोंट बी आस्किंग यू एनीथिंग.
एक्सक्यूज मी। आपके पास रेगुलर वर्ब होता है और इरेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर वर्ब में आपके पास क्या है कि आप जब किसी भी वर्ब को चेंज करते हैं तो या तो आप डी का इजाफा करते हैं या ईडी का इजाफा करते हैं ना। व्हाट इज डी एंड व्हाट इज ईडी? जैसे आप कहते हैं कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। टॉक, टॉक हो जाएगा, टॉक हो जाएगा। मीन ईडी का या डी का इजाफा होता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, इरेगुलर वर्ब थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। और इरेगुलर वर्ब बेसिकली आर हैविंग 3-4 स्टाइल्स ऑफ इरेगुलरिटी। एक तो ये हो सकता है आपका इरेगुलर वर्ब कि जिसमें आपके पास तीनों वर्ड्स चेंज हो जाए, जैसे सिंग, सैंग, संग। सिंग चेंज है, सैंग चेंज है और संग चेंज है। आपके पास दूसरा हो सकता है कि दो वर्ड सेम हो और एक वर्ड चेंज हो, जैसे कम, केम, कम। पहला वर्ड भी कम है, लास्ट वर्ड भी कम है। तीसरा एक और ऑप्शन भी हो सकता है आपके पास, एंड दैट इज द ऑल वर्ड्स आर सेम, लाइक शट, 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 कट, 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 कुछ, कुछ, कुछ। अगर आप ये तीन देखेंगे, मीन रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब इस तरह होते हैं। इनको मजीद हम तफसीलन समझेंगे जब हम दोबारा टेंसेस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में आ जाइए जी, एडवर्ब। एडवर्ब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था, एडवर्ब इज बेसिकली एडिंग समथिंग टू द वर्ब। एडिंग समथिंग टू द वर्ब। एडिंग समथिंग टू द वर्ब कैसे हो सकता है? हम आमतौर पर आप लोगों को एडवर्ब सिखाते रहे हैं कि किसी भी वर्ड के अंदर जो कि आपके पास वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, उसको अगर आप कैसे कहते हैं? बेटा, फ्रॉम माय साइड द वॉइस इज ओके, आई डोंट नो। एडवर्ब मैंने बताया था आप लोगों को कि एडवर्ब एक ऐसी चीज है जिसमें आप आमतौर पर वर्ब के साथ एल वाई का इजाफा करते हो, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं होता। एडवर्ब को समझने के लिए आपको एक काफी लंबा कुछ सीखना पड़ेगा, और फॉर दैट वी विल बी हैविंग क्लास लेटर ऑन इन फ्यूचर समडे, बिकॉज एडवर्ब इज हैविंग 9 काइंड्स। नाउ 9 काइंड्स है तो उसमें बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। अपने पास अगर पेंसिल और कॉपी या पेन कॉपी आपके पास मौजूद है तो आप दो सेंटेंसेस अपने पास लिखे, मैं बोल रहा हूँ। नंबर वन, we are sitting in the class। we are sitting in the class। सेकंड सेंटेंस लिखिए, we are sitting in। we are sitting in। नाउ दोनों सेंटेंसेस में इन यूज किया गया है। पहले सेंटेंस में इन है, दूसरे में इन है। हम आमतौर पे ये समझते हैं कि इन बेसिकली इज अ प्रेपोजिशन, लेकिन यहाँ पे इन प्रेपोजिशन नहीं है दूसरे सेंटेंस में।
पहले सेंटेंस में इन इज अ preposition when we say we are sitting in the class। जब preposition के बाद कहीं पर आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो, जैसे क्लास है, उस सूरत में बेसिकली वो एडवर्ब होता है। लेकिन अगर किसी भी preposition के आखिर में एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि वी आर सिटिंग इन द क्लास, तो वो आपके पास प्रेपोजिशन होती है। जहां पे कोई भी सेंटेंस किसी प्रेपोजिशन पर एंड हो, वो एडवर्ब होता है। और कोई भी सेंटेंस अगर एडवर्ब के प्रेपोजिशन के बाद कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद है या नाउन मौजूद है, तो वो बेसिकली एडवर्ब नहीं, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। तो ये एक छोटी सी चीज है विच इज कॉल्ड द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। हम इसको एडवर्ब प्लेस होता है, एडवर्ब मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होता है, एडवर्ब क्वांटिटी होता है, एडवर्ब ऑफ डेमोंस्ट्रेशन होता है। मीन वी हैव गॉट टू मेनी एडवर्ब्स, लेकिन सिंस इट इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इंट्रो टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इसको मजीद बाद में बात करते हैं इस पे। The next we have got the adjective. Now मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? आपके पास सिफ्ट, जिसको क्वालिटी कहते हैं। A word which qualifies or modifies a noun or pronoun is called an adjective। एक ऐसा लफ्ज जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ बयान करे, हम उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आपके पास बेसिकली इसके अलावा भी होती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरे एडजेक्टिव, तीसरे एडजेक्टिव, लेकिन हम तीन पे डिस्कस करते हैं आज के दिन। थ्री काइंड्स आप कह सकते हो एडजेक्टिव की होती हैं, बेसिक काइंड्स इसको कह लीजिए। One is called qualitative, second is called quantitative, और second is the third one is called number। Now, what is qualitative? Qualitative basically, when we talk about qualitative adjectives, it describes the quality of a noun or pronoun, the same the definition which adjective has। Like हम कह सकते हैं कि he is a boy, लेकिन हम ये कह सकते हैं he is a good boy, तो वो good is basically a quality। there are many flowers in the garden, हम कह रहे हैं there are many flowers in the garden, flowers are there but where the flowers are in the garden, हम कहते हैं कि what sort of flowers are there, there are beautiful flowers in the garden, मतलब flowers हैं लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। now beautiful basically explains the quality। अब आ जाते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी बेसिकली, क्वांटिटी और नंबर तकरीबन एक जैसे लगते हैं जब हम सुनने की बात करें। क्वांटिटेटिव और जो आपके पास नंबर है वो एक तरह के इसलिए लगते हैं कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वांटिटेटिव मीन मिकदार और नंबर मीन तादाद। मिकदार गिनी नहीं जा सकती, नंबर गिने जा सकते हैं। मैं फर्ज कर लीजिए कि क्वांटिटेटिव मैंने कोई बात की, मैं कहता हूँ कि देयर आर सम स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, देयर आर सम स्टूडेंट सिटिंग, सम क्या हम सम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं डेफिनेटली। मैं कहता हूँ देयर आर मेनी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, नहीं गिन सकते मैनी। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, डेफिनेटली नहीं गिन सकते। देयर आर मेनी ट्रीज, मेनी लीव्स ऑन द ट्री, ये देयर आर मेनी हेयर ऑन द हेड। अभी भाई ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि क्वांटिटेटिव के क्राइटेरिया में आती हैं ना। नंबर आप कह सकते हैं कि आई स्टडी इन क्लास 10th, 10 बेसिकली इज नंबर। आई हैव 50 रुपीज इन माई पॉकेट, 50 इज अ नंबर, लेकिन आपकी क्वांटिटी, आपकी क्वालिटी है, मीन एडजेक्टिव है नंबर का। आप कहते हैं, मैं किसी क्लास के सामने से गुजरता हूँ, मैं कहता हूँ देयर आर सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं क्या करता हूँ कि उस क्लास में जाता हूँ और गिन लेता हूँ। जब मैं उन बच्चों को गिन लेता हूँ तो वो उन बच्चों की तादाद बनती है शायद 50, 50। तो मैं ये कह सकता हूँ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। पहले जो सम थे वो 50 हो गए, मीन पहले जो कि मिकदार थी जो कि काउंटेबल नहीं थी, अब वो क्या हो गई है? काउंटेबल हो गई है। इस तरह आपके पास जो एडवर्ब है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्वांटिटेटिव और नंबर इस तरह आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज preposition। we talked about preposition in the last class। मैंने वो कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी preposition क्या होती है, और हम आमतौर पर preposition को सबसे आसान टॉपिक समझ रहे होते हैं, but in actual this is not like that। आपके पास जो preposition है, it is one of the most difficult topic because you are never sure which preposition is suitable for what। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था वो कुर्सी में बैठता है या कुर्सी पर बैठता है, लेकिन उर्दू में हमारे पास हमेशा कुर्सी पर बैठता है। बट इन इंग्लिश व्हेन देयर इज एन आर्म चेयर जिसके बाजू बने होंगे, तो उस कुर्सी पर बैठ रहा है, कुर्सी में बैठ रहा है, पर नहीं बैठ रहा। इन इंग्लिश दैट वुड बी ही इज सिटिंग इन द चेयर, नॉट ऑन द चेयर। अगर उसके बाजू नहीं है, मीन वो स्ट्रेट चेयर है, जैसे घर पे आपके पास
जैसे घर पे आपने देखा होगा जो डाइनिंग टेबल की कुर्सी है या जो आप दावत वगैरह पे कहीं जाते हैं, वो जो चेयर्स होंगी उनके आर्म्स बने हुए नहीं होते, बाजू बने हुए नहीं होते। अब जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो उन चेयर्स के लिए जो आप प्रेपोजिशन यूज करोगे तो यू आर सिटिंग ऑन द चेयर। तीन काइंड्स हम बेसिकली इनको लेते हैं प्रेपोजिशन की, टाइम, प्लेस और सिचुएशन। नाउ व्हाट इज टाइम? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आई कॉल्ड हिम and he was on time. Ab on time, on basically is preposition with the preposition of time. Place, uh, she is knocking at the door. Ab door basically is a place. Situation, आप अगर किसी दरवाजे के अंदर आते हैं, दरवाजे से गुजरते हुए किसी कमरे के अंदर आते हैं, तो आप कह सकते हैं he is coming through the door. He is coming through the door. Now preposition of time, preposition of place, preposition of situation, ये तीन चीजें हो गई जो कि हमें याद रखनी है, समझनी है, और यही चीजें जो है वो आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे काम आएंगी। बिकॉज रिलेशनशिप बनाने वाला वर्ड जो है वो preposition ही है, पोजीशन बताने वाला लफ्ज जो है वो भी preposition ही है। कंजंक्शन पे आ जाते हैं जी। कंजंक्शन इज अ वर्ड, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, विच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। दो अल्फाज को, दो फ्रेजेस को, दो जुमलों को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जी? कंजंक्शन कहते हैं ना। कंजंक्शन conjunction basically is another word for connectors in modern language। आपकी जो आज की जदीद दुनिया में जो इंग्लिश बोली जा रही है उसमें हम कनेक्टर्स, कंजंक्शन की जगह वर्ड जो यूज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर। Yes, of course. One of the student has just given an idea. Okay, sometimes words of preposition are used with the verb to make a phrase, right? Yes, of course, this is very right. आपके पास उसको हम लोग कहते हैं phrasal verbs। preposition के साथ अब आपके पास phrasal verbs होते क्या हैं? Adding a verb with an adjective, sorry, adding a verb with an adverb or preposition is called a phrasal verb। आपको करना क्या होता है कि आप किसी भी वर्ब के साथ आप preposition या adverb ऐड कर देते हैं। जैसे आप लोग बचपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, लुक आफ्टर, लुक इनटू। अब इनटू और आफ्टर prepositions हैं, इनके साथ आपने ऐड क्या किया? वर्ब। वर्ब कौन सा ऐड किया? लुक। आपके पास जहाज जो उड़ता है उसके लिए आप लोगों ने यकीनन एक वर्ड सुना होगा जो कि हम यूज कर होते हैं, विच इज फ्रेजल वर्ब। उसको हम फ्लाई नहीं कहते, हम उसको उड़ना, उड़ने के लिए जो वर्ड यूज कर रहे होते हैं, टेक ऑफ करते हैं। द प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब टेक्स ऑफ बेसिकली इज वन फ्रेज जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसी तरह आप आम लफ्जों में, जो आम लैंग्वेज है आपकी, उसमें आप कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन। रिजेक्ट मीन रिजेक्ट कर देना, मेरी एप्लीकेशन प्रिंसिपल ने रिजेक्ट कर दी। आप उसको फ्रेजल वर्ब के तौर पे अगर लोगे तो यू कैन से द प्रिंसिपल टर्न डाउन माई एप्लीकेशन। नाउ टर्न डाउन, टर्न डाउन, टर्न डाउन इज बेसिकली giving you the idea कि application has been turned down or rejected the idea। turn down the application और turn down an application, तो ये आपके पास वो किसी स्टूडेंट ने एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरह हो सकता है। हम कंजंक्शन पे थे, तो कंजंक्शन याद रखिएगा, आपके पास एंड हो सकता है, बट हो सकता है, वेयर एज हो सकता है, आई हो सकता है। ये सारे के सारे कंजंक्शन हैं जो कि आपको यूज किए जाते हैं। इनको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम कॉनोटेशंस भी कहते हैं, कॉनोटेशंस भी कहते हैं। खैर, इस पे फिर हम तफसीलन दोबारा बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। यू वेलकम बेटा। हम नेक्स्ट में आ जाते हैं इंटरजेक्शन। बेटा आप लोग सारे जितने भी हैं, वी हैव गॉट ऑल दी बीइंग ह्यूमन बीइंग, we have got naturally built in many things। we have got rage, we have got hate, we have got love for each other, we have got emotions, we have got some sort of retaliations, we have got fight। all these are basically our emotions, and all these emotions can be described as interjection। but how they are being described as interjection? when we are basically giving any of the emotions with an exclamatory mark। लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको पता है क्या होता है?
यू मस्ट हैव लर्नड इन पंक्चुएशन। आपके पास एक्सप्लेन करना होता है इमोशंस। लाइक आप अगर मैच जीत जाते हैं, यहाँ पे लड़कों की तादाद मौजूद है, आप अगर मैच जीत जाते हैं तो यू प्रोबेबली से हुर्रे और हुर्रा। आप अगर क्या कहते हैं, हाँ यस समवन हैज गिवन मी द एक्सक्लेमेटिव मार्क, थैंक यू। आप हुर्रा कहते हुए आ रहे हैं। अगर कोई गलत हो जाता है काम या कोई नुकसान हो जाता है तो यू से अलास। और अगर आप लिटरली इंग्लिश में ले जाते हैं तो यू माइट से अलाक। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, और इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हमारी सब चीज़ें आगे की तरफ जा रही होती हैं, जिनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। बेटा अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को थोड़ा सा रिकैप करके वाइंड अप करेंगे। जो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन था वो खत्म हो गया है यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बुक पर आएंगे, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल टू कीप अ नोटबुक, a pen or pencil, and your book with you, because we can just have, I might take you people to unmute your mics, or maybe you might join me on video call, so that you can give us the idea। आपको जो पता है उसके बारे में। हमारा जो पहला पोम होगी दैट वुड बी द वॉइस ऑफ गॉड, इंशाल्लाह जो हमारी मंडे वाली क्लास है उसमें हम इसको पढ़ेंगे और उस पर तफसीलन बातचीत करेंगे। इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो ट्रांसलेशन है, इस पे जो पोइटिक जो फीचर्स यूज की गई हैं उन पे बात करेंगे। मेटाफोरिक्स यूज की गई हैं अगर, या सिमिलीज यूज की गई हैं, हम उस पर बात करेंगे। और इसका सेंट्रल आइडिया बनाकर कोशिश करेंगे कि आपको दे दें, ताकि आपके वो आइंदा के काम आ सके और आप उसको सीख सको। फ्रॉम माई साइड अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो यू पीपल कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, अदरवाइज विल बी जस्ट फिनिशिंग आवर क्लास। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, विल यू अनम्यूट अस ड्यूरिंग द पोइट्री? इफ नेसेसरी वी कैन अनम्यूट यू, नो इश्यूज एट ऑल। अगर कहीं पे हमें लगता है कि आपसे कोई सवाल ऐसा पूछना है जिसमें आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, तो अनम्यूट किया जा सकता है। अभी भी अगर कोई आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो यू कैन आस्क, रेज योर हैंड, आई विल आंसर यू। Even I am answering your questions on the chat as well. I am trying my level best. Still, if there are few questions, you can just send us through your WhatsApp, and हमारे जो लोग मौजूद हैं वो मुझे भेज देंगे। We'll definitely be trying our level best to answer your questions. किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकते हैं हम, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। Is anyone? Thank you, Noor. Thank you very much. I hope to see you people very soon physically. Okay. चलें जी, अगर कोई चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों ने पूछनी हो मज़ीद, तो हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। फ्रॉम माय साइड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। ट्राई टू बी गुड टू यू, ट्राई टू बी गुड टू योर फैमिली, ट्राई टू बी गुड टू योर पेरेंट्स एंड पाकिस्तान। प्रेपोजिशन किसी ने पूछा है, एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन कर दे बेटा। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन को प्री कर लो और पोजीशन कर लो। प्री का मतलब होता है पहले आने वाला, पोजीशन का मतलब होता है बाद में। मीन पोजीशन से पहले लफ्ज जो यूज किया जाता है उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। लाइक यू कैन से वेरी इजीली कि वेयर एम आई एम इन द सेंटर। नाउ सेंटर से पहले प्रेपोजिशन यूज हुआ है, और प्रेपोजिशन कौन सा यूज हुआ है? इन। नाउ इन इज अ प्रेपोजिशन जो कि मेरी जगह बता रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। आप अगर घर पे बैठे हैं तो यू कैन से वी आर एट होम। एट होम इज बेसिकली अ प्लेस, उससे पहले एट आया है। एट बेसिकली गिव्स यू द पोजीशन ऑफ योर होम। वी आर एट होम। आई होप यू अंडरस्टैंड। Preposition एक पूरा टॉपिक है, we'll be discussing it in detail when we'll be having this topic, and I hope that this topic is going to have a good time of us, probably 2 days or 3 days, but let's see when the time comes. Nothing else is required from me to answer, I guess. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz.